नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, इस्लामाबाद में महावार्ता बेनतीजा रही है। इस्लामाबाद में महावार्ता के बाद JD Vance बोले हैं, उन्होंने कहा है कि ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत रही लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अब तक सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने हमारी शर्तों को नहीं माना। ईरान के साथ 21 घंटे तक बातचीत हुई है। महावार्ता फेल होने के बाद ईरान भी बोला, ईरान की तरफ से भी बयान आया जहां ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। अमेरिका को वार्ता छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। तो ईरान की तरफ से भी सीधे दो टूक कह दी गई है कि आगे कोई बातचीत नहीं होगी और अमेरिका को सिर्फ बहाना चाहिए था। बहरहाल एक तरफ JD Vance ने साफ तौर से कहा है कि बातचीत अच्छी रही, वार्ता अच्छी रही, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। Hey everybody, and let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything, and also did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the President throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the President consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी, वार्ता से पहले भी, कि सीज फायर इस समय नाजुक स्थिति में और अभी भी वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से जो इस्लामाबाद में महावार्ता हुई है वो महावार्ता बेनतीजा रही है और इस पर JD Vance ने भी साफ तौर से कहा बातचीत तो अच्छी रही लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि अमेरिका सिर्फ बहाना चाहता था, अब हम किसी वार्ता में नहीं आएंगे।
प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखिए बिल्कुल जया, ये जो पूरा घटनाक्रम है निश्चित जी। तौर पर ये चौंकाता है ऐसे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदें लगाई गई थी इस वार्ता को लेकर, वो उम्मीदें खरी नहीं उतरी हैं। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनका बयान, और वो दिखाता है कि वार्ता बेनतीजा रही है। प्रस्ताव दिया गया ईरान को, लेकिन ईरान की ओर से सीधे तौर पर जो अमेरिका की शर्तें थी उन पर झुकने के बजाय साफ कर दिया गया है कि वो जो उनकी चिंताएं हैं पहले उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि ईरान की ओर से जो युद्ध मुआवजे की मांग की गई, हॉर्मुज स्ट्रेट उस पर कब बरकरार रहेगा, ईरान का ओमान का जो तट है, दूसरी तरफ पहले ही ये बयान दिया था ईरान ने। दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण पहलू हैं इस चर्चा से जुड़े हुए, उसमें चर्चा ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जो अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि वो दबाव के जरिए और इसमें अपनी बात मनवा लेगा, ऐसा नहीं हो पाया है। दूसरा, ट्रंप के जो बीच में बयान रहे उसको लेकर नाराजगी जताई है ईरान की ओर से वार्ताकारों ने, इसीलिए ये वार्ता जो थी वो नहीं चढ़ पाई है, यानी किसी नतीजे पर, ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन एक दिशा जरूर मिली है इस बातचीत के प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है, और कहीं ना कहीं अभी ये साफ नहीं है कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर किया गया है और उसको लेकर क्या अब आगे की स्थिति रहेगी, क्या अमेरिका की ओर से ऐलान होगा, क्योंकि डराने धमकाने को लेकर जो ट्रंप के बयान थे वो ताजे बयान और हमले को लेकर अगर डील नहीं होती है तो हमला किया जाएगा। उसके बावजूद ईरान अगर अपने रुख पर अड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती उसको, तब तक इस वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन खास बात यह है कि जहां जेडी वेंस का बयान आया है, जो प्रस्ताव दिया है उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि ये प्रस्ताव ईरान को दिया गया है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन अगर बात नहीं बनती तो क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और इसके बाद निगाहें हैं आगे के घटनाक्रम पर। लेकिन जो अभी पूरी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है उसमें ये कह सकते हैं आपकी बातचीत का एक दौर हुआ है, अगली दौर की बातचीत होगी या नहीं ये सस्पेंस है। लेकिन ईरान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है। तो अमेरिका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो अनरिच यूरेनियम है वहां तक पहुंच चाहता है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट वो तुरंत खोला जाए और उस पर जो नियंत्रण हो ये वो चाहता है, जिसको अभी डाली स्थिति साफ कर दी है, का नियंत्रण रहेगा, उसकी शर्तें मानी जाए, युद्ध है उसकी जवाबदेही यहाँ पर ठहराई जाए, मुआवजे समेत तमाम शर्तें ईरान की ओर से रखी है। बिल्कुल प्रदीप बहरहाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से देखे कि वार्ता तो 21 घंटे तक काफी लंबी चली, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही है। जहां जेडी वेंस की तरफ से भी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वार्ता ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत रही, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अब तक सहमति नहीं बन पाई है। यानी कि अब तक अगर सहमति नहीं बन पाई है तो आगे ये सीज फायर जारी रहेगा या फिर इसको तोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जेडी वेंस ने कहा है कि उन्होंने हमारी बात को, हमारी शर्तों को नहीं माना। ईरान के साथ 21 घंटे बातचीत हुई है। महावार्ता फेल होने के बाद ईरान की तरफ से भी बयान आया और साफ तौर से कहा गया कि अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका को वार्ता छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था और अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी, ये साफ तौर से ईरान की तरफ से कह दिया गया। यानी कि अब आगे अगर किसी बातचीत के लिए बुलाया जाता है, वार्ता के लिए बुलाया जाता है, तो जहां तक ईरान तैयार नहीं होगा, ये साफ तौर से कहना है। और वार्ता से पहले का जिक्र कर ले तो यहां पर साफ तौर से ईरान ने ये कह दिया था कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। बहरहाल शर्तें बाद में रखी गई और वार्ता भी हुई, लेकिन यहां पर ईरान ने जिस तरह से कहा कि अमेरिका को बहाना चाहिए था वार्ता छोड़कर जाने का, वो मिल गया है। अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने तो साफ कर दिया है अपने तरफ का पहलू कि आगे हम किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ अमेरिका का अगर जिक्र कर ले तो अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से क्या कुछ डिसीजन लेता है, क्योंकि इजराइल ने अभी तक लेबनान पे हमले रोके नहीं है, वहां पर इसी तरह के अटैक लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब ये शांत होता है जो पूरा माहौल है मिडिल ईस्ट का,
या फिर एक बार फिर से वही मिडिल ईस्ट के हालात देखने को मिलेंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जोर आजमाइश पूरी की जा रही है कि इन तीनों जगहों पर, इन तीनों देशों में जो वार्ता चल रही है वो वार्ता किसी नतीजे तक पहुंचे, किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, जिससे मिडिल ईस्ट को और उसके आसपास के जितने भी देश हैं उनको शांति मिले, राहत मिले। क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद, इतने युद्ध के बाद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खामियाजा, आर्थिक नुकसान से लेकर काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा था सभी देशों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखे कि बातचीत का इंतजार कर रहे थे और सबकी निगाहें थी कि बातचीत में क्या कुछ होगा, 21 घंटे लंबी ये बातचीत चली है लेकिन बेनतीजा रही है और जेडी वेंस ने भी साफ तौर से कह दिया कि बातचीत तो अच्छी रही है लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। तो ईरान ने भी दो टूक कहा है कि अमेरिका को वार्ता से बाहर जाने का मौका चाहिए था, बहाना चाहिए था और अब हम किसी वार्ता में नहीं आएंगे। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ललित, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में जो एक टेबल पर अमेरिका और ईरान आए थे बातचीत के लिए, वो बातचीत बेनतीजा रही है। अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई है। ईरान की तरफ से कहा गया और अमेरिका को वार्ता छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, ये ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। एक जो क्लैरिटी है वो तो अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है कि अब आगे सीज़फायर में क्या कुछ होने वाला है।